डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। उसका जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसकी स्टोरी जो है हमने अब तक की थी। और अब तक पता किया था हमने कि जो ग्रिफिन है वो एक क्रेजी साइंटिस्ट है। और ग्रिफिन जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी इनविजिबल। And after a long research, he invented a rare drug which could make a person invisible. And he swallowed some rare drugs, and at last he became invisible. But in order to become invisible, he had to remove his clothes every time. And when he was doing this research, it was mid-January, and he chose that period that was very critical, and he could do nothing without clothes. And that's why he entered big London store. He stole various things over there, and he robbed the owner of the shop by attacking him. And in this way he became a lawless person. A lawless person means a person who breaks the law. Okay, so we'll read next part of the story, and this is second video. In first video we have already covered these things. Okay, now we'll start from here. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away mean to say he was very eager, he was in a hurry to leave crowded London, and he, for this very purpose, he took a train to reach Iping village, and he booked 2 rooms at a local inn. inn का मतलब होता है सराय। सराय क्या होता है? a place for charity, एक ऐसा स्थान जो चैरिटी के लिए हो, दान के लिए हो, जहाँ पर कमरे वगैरह मिल जाएं, जैसे धर्मशाला होती है उसे इन बोलते हैं यहाँ पर, इन। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. और उस इन के अंदर विंटर में कोई नहीं आता था, और विंटर के मौसम में वहाँ पर जब ग्रिफिन पहुँचा तो ये एक अनयूजुअल घटना मानी गई। और a stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mean to say, Griffin was looking very strange because he had covered his body parts with bandages, and he was wearing false nose and side whiskers and spectacles. So in this way he had covered himself, and he was looking very strange. So the villagers became curious to know about him, and everybody was talking about him. Such uncommon appearances set all tongues wagging. all tongue wagging का मतलब होता है कि सभी लोगों ने उसकी बातें करना स्टार्ट कर दी, सभी की जुबान पर उसी की चर्चा थी। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, उसने पूरी कोशिश की, अपना पूरा प्रयास किया, एफर्ट किए उसके साथ फ्रेंडली होने के। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। बट ग्रिफिन की कोई डिज़ायर नहीं थी उससे बात करने की, और उसे बताया कि मेरा यहाँ आइपिंग में आने का जो रीज़न है वो है कि मैं अकेलापन चाहता हूँ। सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, कि आई वॉन्ट लोनलीनेस, मैं अकेलापन चाहता हूँ, एकांत चाहता हूँ, और इसी की वजह से यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा एक एक्सीडेंट में जो मेरा फेस है ये डिसफिगर हो गया है, ये कह सकते हैं कि अफेक्ट हो गया है, और ये जो है बिल्कुल क्रूप हो गया, अगली हो गया है।
Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. And Mrs. Hall was very satisfied as he had paid her in advance, and that's why she was ready to forget her eccentric guest who was a scientist, and because he had paid her money in advance, rent was paid to her in advance. मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, इसलिए मिसिज हॉल जो थी वो उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल का मतलब होता है इरिटेटिंग, जो शो टेम्पर्ड जो था वो उसका जो इरिटेबल जो चिड़चिड़ा जो स्वभाव था उसको भूलने के लिए वो तैयार हो जाती है कि ठीक है हम भुला देते हैं। वाई? क्योंकि उसे पैसे एडवांस दे दिए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन जो स्टोलन मनी था वो ज़्यादा दिन नहीं चला और ग्रिफिन ने एडमिट किया कि अब उसके पास में और कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन उसने pretend किया, pretend means होता है he show off in such a way that he was expecting a check, कि उसे एक चेक मिलने वाला है, कभी भी वो उसे चेक मिल सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred, and after that, उसके बाद में उसके कुछ समय बाद एक बहुत ही curious का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एपिसोड का मतलब कंटेक्स्ट या इंसिडेंट, वहाँ पर इंसिडेंस हो जाती है, एक घटना होती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग में क्लर्जीमैन था। क्लर्जीमैन होता है होली मैन, पादरी जिसे हम कहते हैं, अबोट भी कहते हैं, ABBOT अबोट। जो चर्च में जो पुजारी होता है उसे बोलते हैं क्लर्जीमैन था। और उसकी वाइफ जो थे वो जो स्टडी रूम था वहाँ पर कुछ नॉइस होता है, वहाँ पर आवाज़ होता है, क्लेमर होता है, उसको सुन करके जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स का मतलब धीरे धीरे नीचे आते हुए, सीढ़ियों से नीचे आते समय। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने चिंक ऑफ मनी को सुना, पैसे की खनखनाहट को सुना जो कि क्लर्जीमैन की डेस्क से चुराया जा रहा था, बाहर निकाला जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रास्प फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, बिना कोई शोर किए अपने हाथ में एक पोकर लेकर के, ग्रास्प मनी होता है होल्डिंग, फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से, पोकर मनी होता है अ पॉइंटेड नीडल, अ बिग पॉइंटेड नीडल, एक बड़ी मोटी थिक जो पॉइंटेड नीडल होती है जिसे हम सुआ कहते हैं, जो कि जो अपनी गनी बैग्स होते हैं, जो बोरी होती हैं, उनको बैग्स को सिलाई करने का काम करता है, उसे बोलते हैं पोकर। वो उसको अपने हाथ में पकड़े हुए था मजबूती से और क्लर्जीमैन ने एकदम से दरवाजे को खोला। फ्लंग ओपन का मतलब ओपन द डोर सडनली, सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने रियलाइज़ किया कि रूम तो बिल्कुल खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. और उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे, कर्टेन्स के पीछे, चिमनी के ऊपर, सब जगह उसको तलाश किया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। There wasn't a sign of anybody. वहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था कि वहाँ पर कोई होगा। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी डेस्क को खोला जा रहा था और हाउसकीपिंग मनी जो था वो मिसिंग हो रहा था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. सारा दिन क्लर्जीमैन ये कहता रहा कि यार ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर है, असाधारण घटना है,
ऐसी घटना जो कॉमन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज nobody was there in the room and still the money was being stolen. So it was an extraordinary event according to the clergyman. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के जो फर्नीचर था उनका, वो सुबह कुछ देर बाद में, थोड़ी देर बाद में जो हुआ था, उसका जो बिहेवियर था उसके फर्नीचर का, वो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. यानी कि आफ्टर सम टाइम व्हेन दे हैड लेफ्ट द रूम देन द फर्नीचर of Mrs. Hall's room behaved in a strange way, and that was more extraordinary than the incident of stealing the money. Okay. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड, मकान का मालिक और उसकी वाइफ बहुत जल्दी जाग गए थे और साइंटिस्ट के दरवाजे बिल्कुल खुले देख करके बड़े हैरान थे. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि आमतौर पर इसे बंद रहते थे और इसमें ताला लगा हुआ होता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो आग बबूला हो उठता था अगर कोई उसके रूम के अंदर एंटर होता था. द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अवसर था, चांस था, ये बहुत अच्छा लगा और इसको मिस नहीं किया जाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने सोचा. दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे में से झांक के देखा. सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, दरवाजे में से देखा कि कोई अंदर नहीं है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड किया, छानबीन करने के बारे में डिसाइड किया. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और बेड क्लोथ्स थे वो थोड़े ठंडे थे, जो कि इस बात को शो कर रहे थे कि साइंटिस्ट कुछ समय पहले ही खड़ा होगा, वहाँ से खड़ा हुआ होगा. एंड और भी जो अजनबी बात थी वो ये थी कि इन द स्ट्रेंजर स्टिल, और जो कपड़े वहाँ पर जो थे, क्लोथ्स और बैंडेजेस जो हमेशा पहनता था वो अजनबी आदमी, यानी कि वो साइंटिस्ट, वो वहाँ पर कमरे में इधर उधर पड़े हुए थे. ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास में किसी के सूंघने की आवाज़ को सुना. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और एक क्षण बाद में ये जो बेड पोस्ट के ऊपर, बेड का जो पाया होता है, बेड पोस्ट बोलते हैं उसे, उसके ऊपर जो हैट रखी हुई थी, जो टोपी रखी हुई थी, वो हवा में जंप करती है, स्प्रिंग करती है और यह उसके फेस से टकराती है. डैश का मतलब होता है बैंग इटसेल्फ इनटू हर फेस. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, इसके बाद में जो बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव हो जाती है, वो सजीव हो उठती है. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और ये हवा में उछल करके इसने क्या किया, मिसेस हॉल की जो टांगें थी, लेग्स थी, उसका जो फॉरमोस्ट जो आगे का भाग था, उसके ऊपर उसे अटैक किया. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, जब उसका हस्बैंड और वो दोनों टेरर, डर के मारे वहाँ से मुड़े, तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी, उन्होंने उन दोनों को वहाँ से कमरे से बाहर धकेल दिया और दरवाजे जो हैं धड़ाम से बंद हो गए और वहाँ ताला लग जाता है. लॉक द डोर आफ्टर देम. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. अब मिसेस हॉल जो है वो बेहोश होकर के सीढ़ियों पर गिर जाती है. हिस्ट्रिक्स का मतलब अनकॉन्शियसनेस के साथ वहाँ पर गिर जाती है. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture.
अब उसे इस बात के लिए यकीन था कि रूम जो है उसमें कोई आत्माएं आती जाती रहती हैं, आत्माएं रहती हैं, और वो जो स्ट्रेंजर है, जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो किसी न किसी तरीके से उस फर्नीचर में उन आत्माओं को एंटर करवाता है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉर्न। अब मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, वेल, WAIL, वेल, वेल का मतलब होता है विलाप करना। वो वहाँ पर विलाप करती है, विलाप करने लगी, रोने लगी, कहा कि इस चेयर के ऊपर मेरी बेचारी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोचने वाली बात है कि आज ये मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है यही चेयर। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाई विच क्राफ्ट। और जो वहाँ पर नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनके बीच में फीलिंग्स थी कि जो समस्या थी वो किसी चुड़ैल का काम था, विच क्राफ्ट का काम था, जादू टोना था। बट विच क्राफ्ट और नॉट। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब क्लर्जीमैन के घर पर चोरी की न्यूज़ फैली तो पता चला, सबको पता चला उस चोरी की घटना के बारे में, तो उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट को जो है उस पर सस्पेक्ट करने लगे लोग कि उसी का हाथ है इसके अंदर। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और उनका जो सस्पेक्ट है, सस्पिशन है, जो शक है, वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया जब उसने रेडी कैश प्रोड्यूस किया, उन्होंने कैश अमाउंट दी। हालांकि कुछ समय पहले, ज़्यादा समय पहले नहीं, उसने थोड़े समय पहले ये कहा था कि उसके पास में कोई मनी नहीं है, धन नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। और जो गांव का जो कांस्टेबल था उसको जल्दी से सीक्रेटली बुलावा भेज दिया कि भाई आओ यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब कांस्टेबल का वेट करने की बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास में गई, जो किसी न किसी तरीके से मिस्टीरियसली, रहस्यमय ढंग से एम्प्टी बेडरूम में प्रकट हो गया था, वहाँ पर आ जाता है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जो मेरी चेयर है उसके साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने ये मांग की, पूछा, उससे जोर दे के पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से खाली कमरे से बाहर आए और किस तरीके से तुमने एक बंद कमरे के अंदर एंटर किया। So here we can see this is Griffin and this is Jefffer, the village constable who was sent for. This is Mrs. Hall and this is Mr. Hall, Mrs. Hall's husband, and this is village inn, and this is also gives offer services for wine as well. So people come here. The scientist was always quick tempered. Now he became furious. जो साइंटिस्ट था यानी ग्रिफिन, वो हमेशा ही बहुत ही क्विक टेम्पर्ड रहता था, बहुत जल्दी आवेश में आ जाता था। अब आग बबूला हो गया। You don't understand who or what I am, he shouted. और उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। He shouted, very well, I'll show you. बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। Suddenly he threw up bandages, whiskers, spectacles and even nose. अब अचानक उसने अपने बैंडेजेस, विस्कर, स्पेक्टिकल्स और नोज, जो नकली नोज उसने लगाया हुआ था, इन सब को उतार के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और उसे ऐसा करने में केवल एक मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। और बार के अंदर जो लोग थे उन्होंने अपने आप को एक हेडलेस व्यक्ति को घूरते हुए पाया। नाउ ग्रिफिन वॉज
Invisible mean to say he was becoming invisible. First his head became invisible as he had thrown his bandages, whiskers, spectacles, and even false nose. And Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hat. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his hat. At the meantime, the constable, village constable, whose name was Jeffers, came over there and he was very much surprised. He was amazed to see that he was to arrest a man without a hat. But Jeffers was such a duty bound person that he was not able to, mean to say, he was not supposed to go from there without performing his duty, and he had magistrate's warrant order to arrest Griffin, and that's why he was supposed to arrest that strange person with or without his hat. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब इसके बाद में और भी ज़्यादा रिमार्केबल कम होता है, हैरान कर देने वाला दृश्य पुलिस वाले के सामने आया जब पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की और वो और भी ज़्यादा इनविजिबल बनता जा रहा था। आखिरकार उसने जो है आखिरकार एक शर्ट हवा में उड़ती है और कांस्टेबल ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति से जूझते हुए पाया, स्ट्रगल करते हुए पाया जिसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने पाया, उनको लगा कि उनको पता नहीं कहाँ से मुक्के पड़ रहे थे, उनको मुक्के लग रहे थे। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और आखिरकार जो जेफर्स है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है जब उसने आखिरी बार कोशिश की उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो उसे मुक्के लगते हैं और बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. वहाँ पर लोग नर्वस होकर के परेशान होकर के चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, बट लेकिन कहना आसान था, करना कठिन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन वहाँ से बहुत ही आसानी से भाग जाता है, वहाँ से चला जाता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, अब कोई नहीं जानता था कि हाथ कहाँ रखे, यानी कि कहाँ उसे पकड़ने की कोशिश करे। इन दिस वे वी कम टू नो दैट हाउ एसेंट्रिक द साइंटिस्ट वॉज एंड हाउ rudely he behaves with his landlord and his landlady, and how he became a lawbreaker person. And in this way we come to know that we are not if somebody is not supposed to misuse the power, but he, although he was a brilliant scientist, but he misused all his powers and he did not use that power for the sake of the country but for an individual benefit. He used his power, his experiment, and he just did the harm to the people. So this is the story, and this story has been written by H.G. Wells. Thank you so much for being with me. I hope you must have got the line to line explanation. If you still have any problem, then you can call me up or you can send your queries, problems through WhatsApp. Thank you so much for listening to me. And one thing I want to appeal to you, that if you like my channel, then please subscribe, share and like all these things. Thank you. Have a nice day.